اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ ناظرین پہلی بڑی خبر ریاست بنگال سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، بڑی افسوسناک خبر ہے کہ بنگال میں تقریباً 34 لاکھ ووٹرز کے نام ووٹنگ لسٹ سے کاٹ دیے گئے ہیں، یعنی 34 لاکھ لوگ اب بنگال میں ووٹ نہیں دے سکیں گے، اور ان تمام لوگوں کو سپریم کورٹ نے راحت دینے سے بھی انکار کر دیا۔ SIR کے خلاف ممتا دیدی نے آواز اٹھائی، سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا، لیکن سپریم کورٹ نے بھی راحت دینے سے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے یہ مانا جا رہا ہے کہ ممتا دیدی کو بڑا جھٹکا لگ سکتا ہے۔ ایکچوئل میں SIR کرا کے الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کر بھارتی جنتا پارٹی نے جو شیطانی حرکت کی ہے اس کو پورا ملک دیکھ رہا ہے۔ SIR کے ذریعے سے خاص طور سے الپ سنکھیانک اور الپ سنکھیانک میں خصوصاً مسلمانوں کے ووٹوں کو کاٹنے کا کام پورے ہندوستان میں بھارتی جنتا پارٹی کر رہی ہے۔ بنگال میں 34 لاکھ مسلمانوں کے اور سیکولر ووٹس کو کاٹنے میں بی جے پی یہ سمجھے کہ کامیاب ہو چکی ہے، اور بی جے پی اور الیکشن کمیشن کا یہ ناجائز جوڑ جو ہے وہ بھارتی جنتا پارٹی کو فائدہ پہنچانے میں لگا ہوا ہے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ مہاراشٹر میں بھی SIR ہونے والا ہے، 15 اپریل تک اس کی مدت ہے۔ میپنگ ناموں کی کروا لیجئے، ذرا بھی کوتاہی نہ کریں۔ خاص طور سے میں مسلم سماج سے کہوں گا کہ ذرا بھی کوتاہی نہ کریں، کیونکہ SIR کے ذریعے سے بھارتی جنتا پارٹی کی ناپاک سازش کامیاب کرنے کی الیکشن کمیشن کوششیں کر رہا ہے۔ ناظرین دوسری بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، وزیر داخلہ امیت شاہ، گرہ منتری امیت شاہ نے ایک انتخابی جلسے میں بھاشن کرتے ہوئے ایک بڑا اعلان بھی کیا۔ وہ اعلان کیا کیا؟ امیت شاہ نے کہا کہ ہم بابری مسجد بننے نہیں دیں گے۔ امیت شاہ نے یہ اعلان کیا کہ ہم بنگال میں بابری مسجد نہیں بننے دیں گے۔ تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب اب یہ اعلان کر کے آپ ہندوؤں کو خوش کرنا چاہتے ہیں، جبکہ بابری مسجد بنانے کا اعلان کرنے والا ہمایوں کبیر بھی آپ ہی کا ہے، یعنی بھارتی جنتا پارٹی کا ہی ہمایوں کبیر ہے، اور پھر ہمایوں کبیر سے ہاتھ ملا کر بنگال میں مسلمانوں کے ووٹ کو تقسیم کرنے کے لیے حیدرآباد کی شیروانی جو پہنچی ہے وہ بھی آپ ہی کی طرف سے پہنچائی گئی ہے۔ بنگال کے مسلمان اور بنگال کے سیکولر ہندوؤں نے اس چیز کو سمجھ لیا ہے، اس لیے بی جے پی کو بنگال کے مسلمان اور بنگال کے ہندو بھی کامیاب ہونے نہیں دیں گے۔ لیکن SIR کے ذریعے سے جو 34 لاکھ ووٹوں کے نام کاٹنے کا کام بھارتی جنتا پارٹی نے کیا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس میں بھارتی جنتا پارٹی بہت ساری جگہوں پر بنگال میں کامیاب ہو جائے گی۔ اور مسلمان تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ اعلان ابھی کر رہے ہیں ہندوؤں کو خوش کرنے کے لیے کہ ہم بنگال میں بابری مسجد نہیں بننے دیں گے۔ ارے مسلمانوں نے خود پہلے ہی اعلان کیا تھا کہ بابری مسجد کے نام سے بنگال میں مسجد بنانا یہ مسجد ضرار یعنی نقصان پہنچانے والا عمل ہے۔ آئیے ناظرین بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، اسٹوڈنٹ لیڈر عمر خالد برسوں سے جرم ثابت ہوئے بنا جیل کی سلاخوں میں ہیں، لیکن اب خبر آ رہی کہ عمر خالد نے پھر ایک بار سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا، اور سپریم کورٹ میں اپیل انہوں نے یہ بھی کیا ہے کہ میرے معاملے کی کھلی عدالت میں سنوائی کی جائے۔ بینچ نے اس معاملے پر نوٹس لیتے ہوئے 15 اپریل کو سماعت کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ دلی فسادات کے ملزمان میں سے ایک عمر خالد ہے، انہوں نے ایک بار پھر سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے۔ اس سال 5 جنوری کو سپریم کورٹ نے ان کی ضمانت عرضی خارج کر دی تھی۔ اب عمر خالد نے اس فیصلے کو چیلنج کرتے ہوئے نظر ثانی کی ایک درخواست داخل کی ہے، اور انہوں نے اپیل کی ہے کہ میری سماعت کھلی عدالت میں کی جائے۔ ناظرین ایک بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں،
भारत के जहाज़ों को, वो जहाज़ जो गैस ऑयल लेकर आ रहे हैं ईरान से, और ईरान का एक ख़ास रास्ता है आबनाए हुर्मुज़। आबनाए हुर्मुज़ को लेकर बड़ी खबर आ रही है कि ईरान के सफ़ीर ने बड़ा बयान दिया है कि हम भारत के जहाज़ों को महफूज रास्ता फराहम करेंगे और भारत से कोई टोल नहीं लेंगे। आपको बता दूं कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ पर, आबनाए हुर्मुज़ पर ईरान भारी टैक्स वसूल कर रहा है, टोल टैक्स ले रहा है, लेकिन ईरान की मोहब्बत को सलाम कि ईरान के सफ़ीर ने कहा है कि हम भारत के जहाज़ों को महफूज रास्तों से निकालेंगे और भारत के जहाज़ों से कोई टोल नहीं लेंगे। और ईरान ने यह भी कहा कि अगर अमेरिका आबनाए हुर्मुज़ पर कोई बदमाशी करता है तो अमेरिका को फिर खतरनाक नताइज भुगतने होंगे। नाज़रीन, नोएडा जो उत्तर प्रदेश का हिस्सा है और दिल्ली से लगकर है, एकदम सटकर है, वहां से खबर आ रही है कि नोएडा में प्राइवेट कंपनियों, निजी कंपनियों के खिलाफ मुलाजमीन का एहतजाज शदीद हो गया और हिंसक हो गया। कुछ मकामात पर गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई और आग लगाने की भी खबरें आ रही है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में यह भी देखा जा रहा है कि पुलिस की गाड़ियों को भी एहतजाज करने वालों ने नहीं बख्शा, उनको भी तोड़ फोड़ कर रख दिया। खबर है कि कम तनख्वाह और रिकॉर्ड में हेरा फेरी, इसको लेकर मजदूर नाराज है। मजदूरों का कहना है कि तनख्वाह में इजाफा किया जाए और करप्शन में कमी की जाए, करप्शन को ख़त्म किया जाए। नोएडा में निजी कंपनियों के खिलाफ मुलाजमीन का शदीद एहतजाज हिंसा में बदल गया और ये हिंसा ऐसी भी हुई कि फिर पुलिस को अपने बल और अपनी ताकत का इस्तेमाल करना पड़ा। जो लोग एहतजाज और आंदोलन कर रहे हैं उन मुजाहिरीन का ये कहना है कि कंपनियों की जानिब से असल तनख्वाह उन्हें कम दी जाती है, जबकि सरकारी रिकॉर्ड में ज़्यादा रकम बताई जाती है। एक खातून मुलाजिमा ने कहा कि उन्हें 9 से 11 हज़ार रुपये माहाना दिए जाते हैं, लेकिन कागजात में 25,000 रुपये पर उनकी सिग्नेचर की जाती है। उनका कहना था कि अगर कोई मुलाजिम आवाज़ उठाता है तो 200-300 रुपये का मामूली इजाफा करके उसे खामोश कराने की कोशिश की जाती है। मुलाजिमीन ने यह भी शिकायत की कि उनसे रोज़ाना 10 से 12 घंटे काम लिया जाता है, लेकिन न तो उन्हें इजाफी वक्त की मुनासिब उजरत दी जाती है और न ही दीगर बुनियादी सहूलतें उन्हें दी जाती है। इन तमाम चीज़ों को लेकर मुलाजिमीन ने ज़ोरदार एहतजाज 2 दिन से छेड़ रखा है। नाज़रीन, रियासत राजस्थान से हमारे रिपोर्टर मौलाना अब्दुल क़य्यूम फलाही ने बताया कि राजस्थान असेंबली को बम से उड़ाने की धमकी मिली, जिसके बाद राजस्थान असेंबली में खौफ व हिरास का माहौल नजर आया। असेंबली में पहुंचने से रोके जाने से नाराज अशोक गहलोत ने हुकूमत पर सख्त हमला किया। राजधानी जयपुर में बड़ी इमारतों और सरकारी दफातर के खिलाफ बम हमलों की धमकियों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। खबरें हैं कि पीर की सुबह तकरीबन 11 बजे राजस्थान कानून साज असेंबली सेक्रेटरीट के सरकारी ईमेल पर एक धमकी आमेज मैसेज आया, जिसमें लिखा था कि पूरे असेंबली कॉम्प्लेक्स को 3 घंटे के अंदर बम से उड़ा दिया जाएगा। इस इत्तला के बाद पूरे कॉम्प्लेक्स को फौरी तौर पर खाली कराया गया, मगर 3 घंटे की सख्त सिक्योरिटी और चेकिंग के बाद ये धमकियां महज अफवाहें साबित हुई। नाज़रीन, आसाम में भी इलेक्शन है और आसाम का वजीर आला किसी जहरीले सांप, कोबरा और नाग से भी ज्यादा जहर उगल रहा है, लेकिन वोट हासिल करने के लिए गौ माता का गोश्त खाने वाले, बीफ खाने वालों को भी बख्श रहा है, क्योंकि अभी वोट हासिल करना है। और ये कह रहा है कि हमने कहाँ रोका है, मुसलमान भाई बीफ खाते हैं, बस हम इतना कहते हैं कि घरों में खाओ। यानी वोट हासिल करने के लिए गौ माता को भी छोड़ दिया। खैर, हेमंत बिस्वा जो वजीर आला है वो इंतहाई खबीस तरीन इंसान है। राहुल गांधी ने उस पर सख्त हमला किया और कहा कि आसाम का मौजूदा वजीर आला मुल्क का सबसे करप्ट वजीर आला है। लेकिन ये भी कहा राहुल गांधी ने कि वो बख्शा नहीं जाएगा, कानून के शिकंजे में उसको भी पकड़ा जाएगा। जब कांग्रेस की सरकार आएगी तो कांग्रेस के बब्बर शेर
हेमंता बिस्वा को बख्शेंगे नहीं। नाज़रीन, इस वक्त एक बड़ी दर्दनाक खबर कल्याण से आ रही है। जी हाँ, महाराष्ट्र के कल्याण मुरबाड रोड पर एक बहुत ही खतरनाक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ। एक इको काली पीली टैक्सी डंपर से टकरा गई। यह टक्कर इतनी खतरनाक थी कि 11 लोगों के हलाक होने की, मरने की खबरें आ रही है। पुलिस के मुताबिक इब्तिदाई तहकीकात में यह बात सामने आ रही है कि तेज रफ्तारी यानी स्पीड और ड्राइवर का गाड़ी पर काबू न रख पाना यह हादसे की बड़ी वजह मालूम हो रही है। ताहम वाक़े की मुकम्मल जांच जारी है। महलूकीन मरने वालों की शनाख्त का अमल भी शुरू कर दिया गया है और उनके अहले खाना को इत्तला दी जा रही है। नाज़रीन, मुंबई से हमारे रिपोर्टर मुफ्ती अबू अय्यूब अंसारी ने बताया कि मुंबई में ऑटो ड्राइवर्स, रिक्शा चालकों के लिए मराठी लाजिम करार दिए जाने पर बिश्नोई गैंग को गुस्सा आ गया और बिश्नोई गैंग ने बाकायदा मीरा भाईंदर के आरटीओ अफसर को धमकी भी दे दी और ये कहा कि जितने कानून तुमने बनाए हैं कि मराठी बोलना लाजमी होगा, ये तमाम कानून वापस लिए जाए। बिश्नोई गैंग ने मीरा भाईंदर के आरटीओ अफसर को धमकी दे दी। आपको याद होगा कि मुंबई में मराठी को लेकर राज ठाकरे की दुकान चलती है। जी हाँ, मराठी को लाजिम किया जाए और मराठी मानूस और मराठी न बोलने पर उत्तर भारतीयों को मारना, ये तमाम चीजें राज ठाकरे की पार्टी ने इसी नाम पर राजनीति शुरू की थी। लेकिन अब जनाब, अगर ड्राइवरों को मराठी बोलना लाजिम करार दिया जा रहा है तो बिश्नोई गैंग भी मैदान में आ रहा है और आरटीओ अफसर को धमकी दे रहा है। खैर, आरटीओ अफसर ने इस मामले की शिकायत दर्ज कराई है। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, आप जानते हैं कि एप्स्टीन फाइल की तरह महाराष्ट्र में एक और फाइल तैयार हुआ, अशोक खरात फाइल, जिसमें हाई प्रोफाइल औरतों के साथ उसने संबंध बनाया और कमाल की बात यह कि रजामंदी के साथ संबंध बने। हाई प्रोफाइल, अंधश्रद्धा का, यूं समझिए कि अंधभक्ति का, अंधश्रद्धा का हाई प्रोफाइल केस सामने आया। लेकिन यह भी कमाल की बात है कि किसी भी हिंदू संगठन का खून नहीं खौला, किसी भी हिंदू संगठन को मैदान में चीखते चिल्लाते आपने नहीं देखा। खैर, अशोक खरात फ्रॉड केस में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की और करोड़ों की गैर कानूनी रकम का सुराग लगा है और उसके बैंक खाते सील किए गए हैं। तकरीबन 130 से ज्यादा मुश्तबा खातों के जरिए करीब 60 करोड़ रुपए के मशकूक माली मामलात सामने आए हैं। ईडी ने खरात और उसकी बीवी के बैंक खातों को सील कर दिया है। डॉक्टर अली, जो कि एक सेक्सोलॉजिस्ट बीएमएस डॉक्टर हैं, सेक्स की सभी समस्या के लिए संपर्क करें। इसके अलावा नसों का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया वाई का पक्का इलाज किया जाता है। बवासीर खूनी हो या मस्से वाली हो, जड़ से खत्म हो जाती है। शुगर बिना परहेज, बिना अंग्रेजी दवाइयों के गारंटी के साथ बिल्कुल खत्म हो जाता है। धात रोग या नाइटफॉल, इसके लिए भी आप हमें कॉन्टैक्ट करें। मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें, जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। चेहरे की झाइयां, दाग धब्बे, कालेपन से है परेशान तो पाए साफ, मुलायम, चमकदार, खूबसूरत स्किन, नेचुरल ग्लो, कुदरती निखार के साथ नूर क्रीम सिर्फ 5 से 6 दिन के अंदर असर। हर्बल सेहत लाया है 100% देसी जड़ी बूटियों से 72 घंटे में इलाज। मर्दाना ताकत, लिकोरिया, शुगर, जोड़ों का दर्द, बवासीर, खुजली, बालों का झड़ना, वजन कम करना, वजन बढ़ाना, तिल मस्से, आंखों के ऊपर की चर्बी, देश या विदेश से कहीं से भी हो, दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें।